ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ رودرور منڈل میں ہیلتھ سینٹر اور اسکول کا ضلع کلکٹر کا دورہ، تعلیم اور طب معیاری عوام کو فراہم کرنے عہدیداران کو ہدایت۔ پولیس یوم شہداء کے موقع پر پولیس نوجوانوں کی جانب سے خون کے عطیے کیمپ کا مختلف مقامات پر انعقاد۔ ملک و معاشرے کے لیے پولیس کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پولیس پریڈ گراؤنڈ پر یوم شہداء ہفتہ واری تقریب کے موقع پر محکمہ پولیس کی جانب سے اسلحہ کی نمائش، طلبہ کو اسلحہ کے استعمال پر مکمل دی گئی معلومات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ رودرور کے پی ایچ سی کا ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے کیا دورہ، اسپتال میں فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں دریافت کیا اور مریضوں کو معیاری طبی خدمات فراہم کرنے کا منڈل میڈیکل آفیسر و عملے کو دیا مشورہ۔ رودرور منڈل مستقر میں سرکاری پرائمری ہیلتھ سینٹر کا ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے دورہ کیا، پی ایچ سی میں دستیاب طبی سہولیات کا معائنہ کیا۔ پی ایچ سی ڈاکٹر عائشہ صدیقی سے مریضوں کے خون کے ٹیسٹ اور علاج کے بارے میں دریافت کیا۔ 1.5 ماہ سے ڈینگو کے کتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے اور وبائی امراض کی صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ گزشتہ ستمبر میں پی ایچ سی میں ڈینگو کے 7 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ اکتوبر کے مہینے میں صرف 2 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے۔ ڈاکٹروں نے کلکٹر کے علم میں لایا کہ وبائی امراض کی شدت میں کمی آئی ہے۔ کلکٹر نے اسپتال میں موجود رجسٹروں کا معائنہ کیا اور طبی عملے کو ہدایت دی کہ وہ مقامی طور پر عوام کو بہتر طبی خدمات فراہم کریں۔ اس پروگرام میں متعلقہ محکمے کے افسران، پنچایت راج ای شنکر، پی ایچ سی کے سپروائزر روی کمار دیگر بھی موجود تھے۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے جامع مسجد اپارٹمنٹ کے لیے 10 لاکھ روپے کیے منظور۔ کارپوریٹر ایم اے قدوس مسجد کمیٹی صدر محمد اقبال احمد کو احکامات کے حوالے۔ حکومتی مشیر مسٹر محمد علی شبیر نے گزشتہ دن اپنے دورے نظام آباد کے موقع پر جامع مسجد مرکز نظام آباد کے تحت تعمیر کیے جا رہے رہائشی کمپلیکس کا جامع مسجد انتظامی کمیٹی کے ہمراہ معائنہ کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ روپے فنڈز دینے کا اعلان کیا تھا۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے آج کارپوریٹر ایم اے قدوس اور جامع مسجد کمیٹی صدر الحاج محمد اقبال احمد اور کمیٹی کے دیگر ممبران کی موجودگی میں 10 لاکھ فنڈز منظور کرتے ہوئے احکامات حوالے کیے اور اپنے وعدے و اعلان کو عملی جامہ پہنایا۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے کمپلیکس کی تعمیر کے لیے آئندہ بجٹ میں مزید 10 لاکھ روپے منظور کرنے کا یقین بھی دلایا۔
इस मौके पर सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस और जामा मस्जिद कमेटी सदर अलहाज मोहम्मद इकबाल अहमद ने हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर करते हुए शाल पोशी की और मोहम्मद अली शब्बीर की सेहत व तंदुरुस्ती और दराजी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं के साथ दुआ की और इसी तरह कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम देते रहने की ख्वाहिश की। जामा मस्जिद कमेटी सदर अलहाज मोहम्मद इकबाल अहमद ने बताया कि बरकतपुरा निज़ामाबाद में अहले खैर जनाब सुल्तान बिन मोहम्मद ने 80 साल कबल सिफाल पोश मकान जामा मस्जिद को वक्फ किया था, जो अब बोसीदा हो गया। इसी मकान के मुकाम पर 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 मंजिला रिहायशी अपार्टमेंट तामीर किया जा रहा। इस तामीरी काम के सिलसिले में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर मिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर ने 10 लाख रुपये फ़ंड्स मंजूर करते हुए अहकामात हवाले किए। इसके लिए जामा मस्जिद कमेटी ममनून व मशकूर है। उन्होंने बताया कि हुकूमती मुशीर आइंदा चंद महीनों में मज़ीद 10 लाख रुपये मंजूर करने का यकीन दिलाया है। इस मौके पर जामा मस्जिद इंतज़ामी कमेटी के ओहदेदारों मिम्बरान नुसरत मोहम्मद खान, अब्दुल मलिक बाबर, मोहम्मद बिलाल अहमद भी मौजूद थे। पुलिस को अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का अहम रोल है। अमन सलामती को बरकरार रखने के लिए समाज दुश्मन ताकतों के हाथों कई पुलिस एहलकारों ने अपनी जानें गंवाई। उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बोधन एसीपी श्रीनिवास का बयान। बोधन देही सर्कल इंस्पेक्टर के दफ्तर के अहाते में पुलिस शहदा की यौम यादगार की याद में खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। निज़ामाबाद जनरल हॉस्पिटल ब्लड बैंक की क़यादत में डॉक्टर काव्या की निगरानी में अतिया दहिंदगान से खून लिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए बोधन एसीपी श्रीनिवास ने कहा कि खून का अतिया अनमोल अतिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस प्रोग्राम में बोधन के ताजिर प्रदीप गुप्ता, पुरुषोत्तम गोपाल, बोधन टाउन के सीआई वेंकट नारायणा, साइलू, पुलिस अमले ने शिरकत की। అమరవీరుల సంస్మరణ దినం సందర్భంగా ఈరోజు బోధన్ సర్కిల్ ఆఫీస్లో బోధన్ డివిజన్ అధికారులు మరియు మన పాత్రికేయ మిత్రులు, వ్యాపారవేత్తలు వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో రక్తదానమే మహాభాగ్యం అనే నినాదంతో అమరవీరుల సంస్మరణ దినం సందర్భంగా రక్తదానాన్ని మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। మన కావ్య మేడం నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి వారు సహకారంతో ఈరోజు మనం రక్తదానాన్ని రక్తదాతల నుంచి స్వీకరించడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో మన బోధన్ డివిజన్ నుంచి ఎస్ఐలు, సిఐలు అందరూ కూడా పాల్గొన్నారు। అది మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది। తక్కువ కాలంలో ప్రజల నుంచి కూడా రక్తం ఇవ్వడానికి చాలామంది ముందుకు వచ్చారు, ఇంకా కూడా వస్తున్నారు। ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రక్తదానం ఇచ్చిన మరియు ఈ కార్యక్రమం పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి పత్రికా మిత్రులకు మరియు ये व्यापारवेत्तలకు ప్రజలకు అందరికీ शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मेयर डी नीतू किरण के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह। निज़ामाबाद में मजलिस की उम्दा कारकर्दगी। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, ज़िला सदर मोहम्मद फयाज़ुद्दीन और डिप्टी मेयर इदरिस खान की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ अक़लियती इलाक़ों और डिवीज़न 54 शकील अहमद फाजिल, डिवीज़न 14 डिप्टी मेयर इदरिस खान, डिवीज़न 55 मोहम्मद नसीरुद्दीन और डिवीज़न 30 मोहम्मद अब्दुल सलीम और डिवीज़न 8 मुतल्लिक़ा डिवीज़न्स में 10-10 लाख रुपये के जनरल फंड से सीसी रोड व ड्रेन्स की तामीराती और दीगर तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। इन तरक्याती कामों के संगे बुनियाद व इफ्तिताह मेयर डी नीतू किरण के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान शहर के तकरीबन 25 डिवीज़न्स और मुतल्लिक़ा इलाक़ों में अवामी बुनियादी और तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। उन्होंने कहा कि उनके हाथों शहर के मुख्तलिफ डिवीज़न्स में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया है। मेयर डी नीतू किरण ने कहा कि चंद माह में कॉरपोरेशन के इंतखाबात मुनाकिद होने के इम्कानात हैं। डी नीतू किरण ने बताया कि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत शहर में मज़ीद तरक्याती मंसूबों और कामों को
पूरा करना है। उन्होंने मरकजी व तेलंगाना रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो शहरी तरक्याती मंसूबों के तहत 15 नुकाती और पटन प्रगति प्रोग्राम और दीगर तरक्याती मंसूबों के तहत निजामाबाद शहर के लिए इजाफी तरक्याती फंड्स जारी करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि निजामाबाद की तरक्की व खुशहाली के निशाने को पूरा किया जा सके। अलावाजी टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस हमेशा शहर की तरक्की व अवामी खुशहाली के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी और मजलूमों को इंसाफ फराहम करने और अवामी हुकूक़ की एकसुई के लिए मजलिस और मजलिसी कायदीन और अवामी नुमाइंदे अपनी फ़र्ज़ शनासी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। शकील अहमद फाजिल ने कहा कि कॉरपोरेशन और बल्दी व अवामी नुमाइंदों की मियाद के अख्तिताम तक मजलिस और मजलिसी कायदीन व अवामी नुमाइंदे अपनी कामयाब नुमाइंदगी और जद्दोजहद के ज़रिए शहर के अक़लियती बिलखुसूस सलम इलाक़ों की तरक्की व अवामी खुशहाली और इन इलाक़ों में अवाम को तरक्याती और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगी। उन्होंने मरकज़ी बिलखुसूस तेलंगाना रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो निज़ामाबाद बिलखुसूस शहर के अक़लियती व सलम इलाक़ों की तरक्की के लिए मुमकिना दरकार तरक्याती फ़ंड्स की मंजूरी और इजरा को यकीनी बनाएँ। मुख्तलिफ डिवीज़न्स व इलाक़ों में होने वाले तरक्याती कामों के आगाज़ और इफ्तिताई तक़रीब के मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, ज़िला सदर मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मोतमद मजलिस शहबाज अहमद, मुतल्लिक़ा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल सलीम, सैयद अब्दुल रफ़ीउद्दीन, कोऑप्शन मेंबर अरशद पाशा, क़ायद मजलिस खलील अहमद, अज़ीज़ राही व दीगर मुकामी मजलिसी क़ायदीन भी मौजूद थे। जो डेवलपमेंट अर्बन का डेवलपमेंट हो रहा है उसके दौरान आज भी जो 10-15 दिन से शुरू हुआ है ये इनाग्रेशंस, आज भी 5 डिवीज़नों में आज इनाग्रेशन मैं और मेरे साथ हमारे डिप्टी मेयर साहब और हमारे फ्लोर लीडर शकील साहब और यहाँ के पूरे कॉरपोरेटर्स और मौली साहब और कॉलोनी के बहुत लोग यहाँ आ चुके हैं। सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ। 5 डिवीज़न 8th डिवीज़न और 14 और 30 और 55 और 54 ये 5 डिवीज़नों में 50 लाख के नगद के हिसाब से आज 3 सीसी रोड और 2 सीसी ड्रेन इनाग्रेशन कर चुके हैं। मेयर मैडम नीतू किरण साहिबा के हाथों जुमला 5 डिवीज़नों में 10-10 लाख का इनाग्रेशन अमल में आया, जिसमें 4 डिवीज़न MIM पार्टी नुमाइंदगी करती है। उसमें आए हुए हमारे डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, ज़िला सदर फयाज साहब और तमामी कारपोरेटर्स, इन तमाम की मौजूदगी में महल्ले के अवाम के बीच में ये इनाग्रेशन अमल में लाया। जो डिवीज़न्स में इनाग्रेशन हुआ वो 14 नंबर, 30 नंबर, 54 और 55। ये जो काम लगाया गया है ये जनरल फंड के तहत काम लगाया गया है, जिससे आवाम को सहूलत के लिए जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसा ड्रेन की ज़रूरत है, ड्रेन और CC रोड कल्वर्ट्स वगैरह लगाए गए हैं। यकीनन ये 40 लाख का काम हमारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इलेक्शन जब हुआ, ये इलेक्शन के बाद से कांग्रेस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फंड्स रिलीज़ नहीं किया। 3.5 करोड़ रुपए बल्कि निज़ामाबाद के लिए, जिसमें 5-5 लाख रुपए के दिए गए, वो भी किधर है कहाँ है पता नहीं है। हम सबसे ज़्यादा फंड जो लगाए गए गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसके तहत, जिसमें माइनॉरिटी के लिए खुसूसन असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर ज़ायद फंड लगाया गया। वो फंड जो रुके हुए इलेक्शन के ज़रिए जब इलेक्शन आया उस टाइम पे रोका गया, लेकिन उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। वो जो काम रुके हुए हैं अगर वो काम हो जाते हैं तो आवाम को बहुत सहूलत होती है। पता नहीं है कांग्रेस गवर्नमेंट क्या चाहती है, आवाम को हुकूमत जो भी बनती है आवाम की सहूलत के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस गवर्नमेंट इंटेंशनली ये काम रुकाई हुई है। रोटरी क्लब का बुनियादी मकसद समाज की खिदमत करना है। गरीब मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल में रेडियोलॉजी मशीन दस्तयाब कराएगी। इस मशीन से महाराष्ट्र और कर्नाटक के मरीजों के लिए आसानी होगी। रोटरी क्लब के गवर्नर शरद चंद्रा का बयान।
निज़ामाबाद ज़िला मरकज़ के सरकारी जनरल अस्पताल में रेडियोलॉजी खिदमात दस्तियाब कराएगी। रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शरद चंद्र ने जदीद तरीन रेडियोलॉजी सिस्टम का इफ्तिताह किया। रोटरी के गवर्नर शरद चंद्रा ने जुमे को डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल में इफ्तिताह के बाद प्रोग्राम में कहा कि रोटरी क्लब का बुनियादी मकसद मुआशरे की खिदमत करना है। शुमाली तेलंगाना में निज़ामाबाद ज़िले के सरकारी अस्पताल में महाराष्ट्र और कर्नाटक के सरहदी इलाकों से बहुत से गरीब मरीज इलाज के लिए रुजू होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लाखों रुपए के मंसूबे बनाए जाएं और ऐसे निज़ाम बनाए जाए तो गरीब मरीजों को तिब्बी खिदमात फ्राहम करने वाले अस्पताल के डॉक्टर और नर्सें रोटरी क्लब के हकीकी शिराकतदार हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ यहाँ बल्कि रियासत में भी रोटरी क्लब गरीब अवाम की मदद के साथ साथ अस्पतालों में भी मुसलसिल काम कर रहा। इस मौके पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने कहा कि रोटरी क्लब ने माजी में भी निज़ामाबाद GGH को मुख्तलिफ आलात और दीगर सामान फ्राहम किया। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब का गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में गुज़िश्ता बरसों के दौरान बिलखुसूस कोविड के दौर में ताउन काबिल सताइश है। अब तक GGH को कई लाख रुपए के सामान फ्राहम किया जा चुका है और वो GGH में आने वाले हर गरीब मरीज को उनकी जानिब से फ्राहम करदा सामान और दीगर तिब्बी आलात के साथ तिब्बी खिदमात फ्राहम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब के जिला सदर विजय राव, जनरल सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, खजांची भरत पटेल दीगर भी मौजूद थे। 4 గంటలు అవుతుంది, అందుకనే మీరు పేషెంట్ టైము, పేషెంట్ అటెండెన్స్ టైము, వాళ్ళకి ఇచ్చిన కన్వీనియన్స్ ఎంత ఇచ్చారో మీరు కొంచెం ఆలోచించండి. ఆలోచించి మీకు అది కనుక మీకు బాగా మేము ఏదో చేసాము అనుకుంటే మీరు ఒకసారి తప్పటి కొట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 4 అవర్స్ మనం హాస్పిటల్లో కూర్చోవాలంటే మనకి ఎంత బాధగా ఉందని తెలుసు. సో అవసరం తెలియజేసిన మీకు, గుర్తించిన మీకు, మిట్టల్ గారికి, అదేనే బయట కంట్రీస్ నుంచి నిధి ఏర్పాటు చేసిన సురేన్కి, ఇదంతా కలిసి పనిచేసి ఒక మంచి పార్ట్నర్తో మనము ప్రజలకి ఎట్లా సేవ అందించగలం అనేది ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్. ఇది మంచి ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఎందుకు మానిటరింగ్ ఇంపార్టెంట్ అన్నా అంటే మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడారు ఏంటి 10 crores మేము వీ కెన్ సేవ్ పేషెంట్ మనీ అని ఆవిడ గారు చెప్పారు. యాక్చువల్గా ఆవిడ గారు ఫుల్ లెగ్ రీప్లేస్మెంట్ కాస్ట్ చేశారు, కానీ మేము యాక్చువల్గా ఓన్లీ ఎనస్థీసియా కాస్ట్ తీసుకోవాలి మేము చేసేటప్పుడు. కరెక్ట్, బట్ మనం సేవ్ చేసేది పేషెంట్కి ఓన్లీ ఎనస్థీసియా కాస్ట్, రికవరీ టైం తగ్గిస్తాం ఇదంతా. సో మనం కనుక కరెక్ట్గా మనం ప్రజలకి మేము ఇది అందించాం. నేను రూపాయి ఖర్చు పెట్టాను, 2 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాను, 5 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాను, వాళ్ళకి విలువ ఉండదు. కానీ నేను సేవ అందించాను అని మనం కనుక ప్రజలకి కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే అంత మనం వాల్యూ ఈజ్ నాట్ 28 lakhs. వాల్యూ ఈజ్ దట్ ఇన్ నెక్స్ట్ 8 years 10 crores వర్త్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ అగోన్. నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తామా. మేము ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ పెట్టున్నాం హైదరాబాద్లో. ఈ సందర్భంగా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ప్రతిమరాజ్ మాట్లాడుతూ రోటరీ క్లబ్ మీ అందరి సహకారం డెఫినెట్గా NGOs, గవర్నమెంట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, పొలిటీషియన్స్, మీడియా అందరి సహకారం లేదే ఈ లెవెల్కి మేము ఈరోజు రీచ్ అవ్వలేము. అండ్ నేను ఇన్ని రోజుల జర్నీలో నేను కూడా రోటరీ క్లబ్ మెంబర్ ఏమో అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఆల్వేస్ ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా, ఇన్స్టలేషన్ జరిగినా ఐ యామ్ దేర్, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఐ యామ్ దేర్. అండ్ సో ఐ హ్యావ్ గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అక్కడ దర్శన్ సింగ్ సార్ నుంచి మొదలు పెడితే జ్ఞాన్ ప్రకాష్ గారు, విజయరావు గారు, రామకృష్ణ గారు, ప్రతి ఒక్కళ్ళతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. అండ్ అది సోషల్ సర్వీస్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. సో మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నట్టయితే BPL ఎనస్థీషియా వర్క్ స్టేషన్ వర్త్ 8 lakhs rupees మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఎనస్థీషియా వర్క్ స్టేషన్ అంటే ఫస్ట్ దాని వర్కింగ్ కూడా కొంచెం తెలుసుకోవాలి. నార్మల్గా ఎనస్థీషియా అనేది ఒక సర్జరీ అవ్వాలి అంటే మత్తు ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చిన్న చిన్న బాయిల్ ఆపరేటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. కానీ ఎనస్థీషియా వర్క్ స్టేషన్ ఏంటిదంటే ఓన్లీ
గ్యాస్ డెలివరీ చేయడమే కాకుండా హాస్పిటల్ పెట్టి చాలా రోజులైంది కాబట్టి खतना सेंटर। जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रुद्रपुर मंडल मुस्तकर में जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल व प्राइमरी हेल्थ सेंटर का किया दौरा। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और तालिबात को फ्राहम किए जाने वाले फूड का किया मुआयना और असातिज़ा तलबा की सलाहियतों को उजागर करें। रुद्रपुर मंडल मुस्तकर में वाक़ जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा किया। उन्होंने अमादश स्कूल कमेटी के ज़ेरे एहतिमाम ZPI स्कूल में शुरू किए गए काम का जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा क्लासों के तलबा को फ्राहम की जाने वाली तालीम और डिजिटल क्लासेस के इंतज़ाम के बारे में दरियाफ़्त किया। तेलुगु और अंग्रेज़ी मीडियम में तदरीस के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया। असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो तलबा की काबिलियत को बढ़ाने के लिए मियारी तदरीस फ्राहम करें। उन्होंने कहा कि निसाब को इस अंदाज में पढ़ाया जाए कि तलबा आसानी से समझ सकें। इस मौके पर कलेक्टर ने नवी जमात का दौरा किया और तलबा से उनकी सलाहियतों को जानने के लिए कई सवालात किए। असातिज़ा को मशवरा दिया कि वो पसमानदा तलबा को मज़मून के लिहाज से पहचाने और ऐसे तलबा पर खुसूसी तवज्जो दे। कलेक्टर ने देखा कि स्कूल के बाहर दोपहर के खाने के लिए चावल पकाए जा रहे हैं। इंतज़ामिया से सवाल किया कि बावर्ची खाने का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। स्कूल के HM को हिदायत की कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि तालिबात को पेश किया जाने वाला खाना आलूदा ना हो और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मेनू के मुताबिक मियारी ग़िज़ायत से भरपूर खाना फ्राहम किया जाए। मेटपल्ली टाउन के VRM गार्डन में कोरटला MLA डॉक्टर के संजय ने CM रिलीफ फंड्स कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। 23,62,500 रुपये के CMRF चेक तकसीम किए और 39,16,124 करोड़ रुपये के कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए। कोरटला के MLA डॉक्टर के संजय ने जुमे को मेटपल्ली टाउन के VRM गार्डन में मेटपल्ली टाउन और मंडल के लिए CM रिलीफ फंड्स कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। 23,62,500 रुपये के 70 CMRF चेक तकसीम किए और 39,16,124 करोड़ रुपये के 139 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस प्रोग्राम में MMARO, मुख्तलिफ महकमे के अफसरान, कायदीन दीगर भी मौजूद थे। पुलिस शहदा की यादगारी के खुसूस में पुलिस परेड ग्राउंड में असलाह की नुमाइश का इनेकाद। कई कॉलेज के तलबा ने की शिरकत। इस मौके पर बंदूकें और रिवाल्वर व दिगर हथियारों के बारे में दी गई मालूमात। एडिशनल DCP कोटेश्वर ने की शिरकत। पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस शहदा यादगारी हफ्ते के हिस्से के तौर पर एक खुलेरी कचेरी का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह एडिशनल DCP कोटेश्वर राव ने किया। बादशाह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, काकतिया और निशिता वुमेन कॉलेजेस की तालिबात ने मुख्तलिफ किस्म की बंदूकें, रिवॉल्वर व दीगर की नुमाइश की।
और उसे दिलचस्पी से देखा। पुलिस एहलकारों ने तलबा को इन हथियारों के काम से आगाह किया। AR एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस शंकर नायक, आर्म्ड रिजर्व ACP नागैया, फॉरेंसिक HVD नागा मोहन राव, रिजर्व इंस्पेक्टर सतीश कुमार श्रीनिवास, पुलिस एसोसिएशन के सदर शकील पाशा व दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। 47లో ఈ వెపన్ మొత్తం కూడా మోడిఫై అయిపోయి వచ్చేసిన తర్వాత 1951 నుంచి యూజ్ చేశారు మన దగ్గర. ఇది మన దగ్గర కాదు, బెల్జియం దేశంలో తయారు చేసింది. తర్వాత మనము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకుంటాం. ఇది ఇండియన్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మన కలకత్తాలో కూడా ఇది తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇదేంటంటే జనరల్గా మనకి ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది మ్యాగజైన్ ఉంటుంది. మ్యాగజైన్లో ఇక్కడ రౌండ్స్ ఫిల్ చేస్తారు. రౌండ్స్ ఫిల్ చేసి ఇదంతా మీకు అంటే ఇదంతా అర్థం కాదు, జనరల్ చెప్తున్నాము. రౌండ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కామన్గా ఇక్కడ చూపిస్తాము. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బ్యారెల్ లోపల ఉంటుంది, ఇక్కడ రౌండ్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ బ్యారెల్ హోల్ ఉంది. ఇక్కడ ఇది మ్యాగజైన్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఓపెన్. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇది ఏం చేస్తుందంటే బుల్లెట్ గైడ్ అనేది తీసుకెళ్ళి ఈ బ్యారెల్లో కూర్చోబెడుతుంది, ఆ హోల్లో కూర్చోబెడుతుంది. క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమంటే ఒక మెకానిజం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఎప్పుడైతే నువ్వు ట్రిగర్ ప్రెస్ చేస్తావో ఇట్లా ఒక మెకానిజం జరిగి ఇందులో ఒక టిప్ వెళ్ళి ఆ రౌండ్ పైన ఇక్కడ చూడండి లోపల ఉంది చూడండి, ఒకటి హోల్ ఉందా, దానిపైన గట్టిగా బలంగా ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. ఫోర్స్ అప్లై చేయగానే ఇందులో ఈ కొన ఉందా, ఈ షార్ప్గా ఉంది చూడండి. ఈ షార్ప్గా ఉన్నది ఏమైందంటే మన రివాల్వ్ అవుతూ వెళ్తూ విత్తిందంటే మనకి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళి రివాల్వ్ అవుతూ అది టార్గెట్ చెప్తాం, టార్గెట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అట్లా బాడీ ఇంజ్యూర్ కానీ లేకుంటే డెత్ కానీ. पुलिस शोहदा यादगारी हफ्ते की तकारीब के एक हिस्से के तौर पर आरमूर के MR गार्डन फंक्शन हॉल में खून के अतिये कैंप का इनेकाद। पुलिस शोहदा की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कई सियासी, समाजी कायदीन और पुलिस ओहदेदारों ने खून का अतिया दिया। आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी का बयान। आरमूर के MR गार्डन फंक्शन हॉल में यादगार पुलिस शोहदा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी ने शिरकत की। यादगार हफ्ते की तकारीब के एक हिस्से के तौर पर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। जारिया माह की 21 से 31 तारीख तक ये तकारीब जारी रहेंगी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इश्तराक से खून का अतिया कैंप मुनाकिद किया गया। आरमूर डिवीज़न के पुलिस स्टेशनों की हुदूद के नौजवानों, पुलिस ओहदेदारों, सियासी, समाजी कायदीन और मुलाजमीन ने ब्लड बैंक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए रज़ाकाराना तौर पर अपने ब्लड को डोनेट किया। डोनेट करने वालों को फल और जूस दिए गए। बादजा आरमूर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि महकमा पुलिस हमेशा शोहदा के अहले खाना के मखरूज से फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोहदा की कुर्बानियाँ अनमोल हैं, जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ACP वेंकटेश्वर रेड्डी ने मज़ीद कहा कि शोहदा ने मुआशरे की खातिर, मुल्क की खातिर और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए समाज दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उनकी रूह हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इस प्रोग्राम में आरमूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने भी खून का अतिया दिया। इस ब्लड कैंप में आरमूर CI रवि कुमार, भीमगल CI नवीन के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदारान भी मौजूद थे। दरपली मंडल में अनाज खरीदारी मराकज़ का IDCMS के चेयरमैन ताराचंद नायक ने किया इफ्तिताह। किसान अपनी फसलें दलालों को फरोख्त करके धोखा ना खाए। किसानों के मेहनत की उगाई गई फसलों के आखिरी दाने तक हुकूमत खरीदेगी। दरपली मंडल में IKP और IDCMS के तहत मुदल तांडा, नड़मी तांडा, सल्पा बंडा तांडा, दमन्नापेट, मरिया तांडा, बिल्लैया तांडा, इंदिरा नगर तांडा में PACS के चेयरमैन ताराचंद नायक ने
अनाज खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह किया, गल्ला तोलकर खरीदना शुरू किया। बादशाह काश्तकारों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तूफान के असर से बारिश के बाज़ इलाकों में धान का दाना गीला हो गया और कहा कि गीला दाना भी सरकारी खरीदारी मराकज़ से इमदादी कीमत पर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान दलालों को धान फरोख्त करके धोखे में ना आए। उन्होंने किसानों से कहा कि वो परेशान ना हो, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां गैर ज़रूरी शोर मचा रही, उनके झूठ पर यकीन ना करें। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि उनकी मेहनत की उगाई गई फसल के हर दाने को खरीदेंगे। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर आरमूर चिन्ना बालराजू, मार्केट कमेटी के डायरेक्टर, मुख्तलिफ गाँव के शाख सदर, सोसाइटी चेयरमैन, साबिक सरपंच, सरकारी अफसरान, कारकुनान, किसान दीगर भी मौजूद थे। లక్ష్మీ చెరు తండా, కార్నర్ తండా, 4 తండాల ఒక గ్రామ పంచాయతీ. ఈ 4 తండాల్లో కూడా 3 సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడం 4 సెంటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి తాండాల్లో కూడా ఇబ్బందులు కాకుండా రైతులకు అనే ఉద్దేశంతో మేము DCMS ద్వారా కూడా ఇక్కడ నడిమి తాండాలో మరి బీరప్ప తాండాలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరూ కూర్చొని వీళ్ళకి సమస్యలు ఏదున్నా మాకు ఫోన్ల ద్వారా మా ఇన్ఛార్జ్ సూపర్వైజర్లు ఉంటారు. మరి ఇక్కడ 2 క్యాండిడేట్లను మేము పెడుతున్నాము. ఒక ఇన్ఛార్జ్, ఒక ట్యాబ్ ఆపరేటర్ను కూడా పెడుతున్నాము. ఇంకో అడిషనల్ అవసరం అని కూడా ఇంకో క్యాండిడేట్ను కూడా పెడతాము. ఎలాంటి గతంలో ఇబ్బందులు జరిగినాయని చెప్తా ఉన్నారు. అలాంటి ఇబ్బందులు జరగకుండా ఖచ్చితంగా మీ యొక్క పంటను పండించినటువంటి పంటను ఖచ్చితంగా తీసుకుపోవడానికి మరి నాణ్యమైన పంటను మీరు తీసుకురావాలి. తాళ్ళు తప్పలు ఉండద్దు. FAQ నామ్స్ ప్రకారం మన ఏఓ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. FAQ నామ్స్ ప్రకారం ఉన్నదనుకో మీ కటింగ్ కాదు, ఏం కాదు. ఒకవేళ మీరు తాళ్ళు తప్పలు తీసుకొచ్చింది అనుకో, రైస్ మిల్లోనే ఏమంటాడు, ఇది నాకు వద్దంటాడు, మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలాంటిది కాకుండా నాణ్యమైనటువంటి పంటను మీరు తీసుకురండి. మనము నాణ్యమైనటువంటి పంటను తీసుకొస్తే ఏదైతే MSP రేటు ఉందో సన్నపట్లకు 2300 ప్లస్ 500 బోనస్, దొడ్డట్లకు 2320 రూపాయలు ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది, ఇస్తుంది. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रुद्रपुर मंडल में हेल्थ सेंटर और स्कूल का जिला कलेक्टर का दौरा, तालीम और तिब मियारी अवाम को फराहम करने ओहदेदारान को हिदायत। पुलिस यौम शोहदा के मौके पर पुलिस नौजवानों की जानिब से खून के अतिये कैंप का मुख्तलिफ मकामात पर इनेकाद। मुल्क व मुआशरे के लिए पुलिस की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पुलिस परेड ग्राउंड पर यौम शोहदा हफ्तावारी तकरीब के मौके पर महकमा पुलिस की जानिब से असलहा की नुमाइश, तलबा को असलहा के इस्तेमाल पर मुकम्मल दी गई मालूमात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। परवाज़ TV के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़े गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।